Today's topic is electrical power supply tariffs. So as we know that in power system there are three systems. One is generation, transmission and distribution. Electrical energy is generated in generating station and it will transmit to the distribution side by using this transmission network. So the distribution company will distribute the electrical energy to consumer at some specified rate, and that rate at which electrical energy is supplied to the consumer is known as tariff. So tariff will include the total cost of production, cost of supplying electrical energy and plus profit. And the basic unit of electricity is kilowatt hour. In simple term, 1 kilowatt hour is the amount of energy used in 1 kilowatt, that is 100 for 1000 watt electric heater for 1 hour. So that means you have to remember this, 1 unit is equal to 1 kilowatt hour, which is the unit of electricity. Now, what are the objective of tariffs? Means what is the need of tariff? ज़रूरत क्या है tariff की? So first point is it recovers. The tariff should be in such a way that it should recover the cost of producing electrical energy. Like जो भी demand आ रही है, ठीक है, उस demand को meet up करने के लिए generating station में फ्यूल की इनपुट है उसको इंक्रीज़ करेंगे, तो ये जो जनरेशन कॉस्ट लगी टू मीट अप दिस डिमांड, वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, रिकवर होनी चाहिए बाय दिस टैरिफ. एंड अनदर वन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई बट कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसमिशन सिस्टम एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो द कॉस्ट ऑन दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम should also be recovered by this tariff. And another point is the cost of operation and maintenance of supply should be recovered. And the last point and the last objective of the tariff should be that the profit on the capital investment can be obtained by using this tariff. So if distribution company will get profit, they will provide continuous and reliable supply to the consumer. Now the characteristics of tariff should be in such a way that it should give proper return. For example, if demand is increased, तो generation side में आपकी जो जनरेशन रहेगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो इंक्रीज़ होगी टू मीट अप दिस डिमांड. ठीक है, तो जनरेशन हुई, यहाँ पर फिर ट्रांसमिशन भी होगा एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा. ठीक है, तो इस पे जो भी कॉस्ट लगी वो रिटर्न दैट शुड गिव द प्रॉपर रिटर्न, वो वापस आनी चाहिए फ्रॉम दैट टैरिफ से. एंड अनदर वन, देयर शुड बी फेयरनेस. फेयरनेस का क्या मतलब है कि अगर कोई एक कंज्यूमर है हु इज़ यूजिंग 10 यूनिट्स एंड अनदर कंज्यूमर इज़ यूजिंग 50 यूनिट्स, तो टैरिफ रेट इस तरह से होनी चाहिए कि फॉर बिगर कंज्यूमर रेट शुड बी लेस एज कम्पेयर टू दी कस्टमर हु इज़ यूजिंग लेस यूनिट्स, ताकि 50 यूनिट्स जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर उसको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चार्जेस पर ना मिले एंड वो उसको इजीली यूज़ कर सके उस एनर्जी को. एंड अनदर पॉइंट इज़ सिंप्लिसिटी. Tariff should be in such a way that customer can understand it easily, right? And the profit should be obtained from that tariff, so that distribution company if distribution company will get profit, they will automatically provide continuous supply to the consumer, and the price should be attractive. Attractive price means that if पावर फैक्टर किसी कंज्यूमर का लेस देन 0.8 है तो उसको उसको पेनल्टी उसमें देनी पड़ेगी, राइट? अगर किसी का इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर है लाइक इट इज़ अराउंड 0.9 और ग्रेटर देन 0.8, सो
उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स उसमें मिले. तो टैरिफ शुड बी इन सच अ वे दैट इट अट्रैक्ट्स दी more and more consumers. So in introduction part, we have studied that what is tariff and what are the objectives of tariff and characteristics of the tariff. Now we will discuss one by one the types of tariff. So there are 7 type of tariffs: simple tariff, flat rate tariff, block rate, top two-part tariff, maximum demand tariff, power factor tariff, and three-part tariff. So we will discuss all 7 tariff one by one. So first is simple tariff. Simple tariff is also known as uniform rate tariff. This simple tariff means that rate at which electrical energy is consumed is fixed, and it is independent of the type of consumer. Means there are, like in general, we are talking about the different type of consumers. There are domestic consumer or commercial consumer and industrial consumers, like, right? So for these 3 consumers, rate per unit of energy consumed is same. Like you can say that 12 rupees per unit. This is same for this domestic one, and this same for this commercial के लिए भी same है और industrial purpose के लिए भी same है. तो इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये सबसे सिंपलेस्ट टैरिफ है. इसमें ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक पर यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स हो रहा है और उसी रेट पर आपको चार्ज देना होगा जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, राइट. और अनदर थिंग हेयर इज़ कि जब आपका इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है, वेदर इट इज़ लो और वेदर इट इज़ हाई, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको कुछ लेना देना नहीं है. लाइक इफ वेदर दी जनरेशन इज़ मोर और जनरेशन इज़ लेस, सो कंज्यूमर क्या करेगा, जितना उसका फिक्स रेट है उतना ही वो क्या करेगा, पे करेगा, राइट. सो यहाँ जो इसका मेन डिसएडवांटेज यही आता है कि इट डज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टाइप ऑफ कंज्यूमर, राइट. ना इंडस्ट्रियल लोड को भी सेम चार्जेस लग रहे हैं, डोमेस्टिक में भी सेम चार्जेस लग रहे हैं. तो ये इसका क्या है, एक बड़ा ड्रॉबैक है. सो नेक्स्ट टैरिफ इज़ फ्लैट रेट टैरिफ. तो फ्लैट रेट टैरिफ में क्या हो गया कि जहाँ सिंपल टैरिफ में क्या था कि डिफरेंट कंज्यूमर्स को सेम चार्ज पर ही इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी. फ्लैट रेट टैरिफ में डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट चार्ज पर electricity provide होगी, which means that different type of consumers are charged at different uniform per unit rates. This is known as flat rate tariff. For example, जो आपका लाइट लोड है एंड फैन लोड है वो किसी और रेट पर चार्ज होगा, सपोज 60 पैसे पे चार्ज होगा, और इससे थोड़ा सा लेस करके आपका क्या है, पावर लोड है, वो चार्ज रहेगा, ठीक है. राइट आपको जो पावर लोड्स है उसको 55 पैसे पे आपने क्या किया, रेट दे दिया, ठीक है. 55 पैसे पे पर यूनिट आपका चार्ज लग रहा है. तो आपका जो पावर लोड है, इन जनरल जो पावर लोड रहता है, दैट विल बी लेस चार्जेस एज कंपेयर टू लाइट लोड एंड फैन लोड. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो पावर लोड होता है वो हायर लोड होता है देन लाइट लोड एंड फैन लोड. एंड फ्लैट रेट टैरिफ की जो ड्रॉबैक है दैट इज़ कि आप इसको स्मॉल कंज्यूमर्स है वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. यू कैन यूज़ इट टू द बिग कंज्यूमर्स, राइट. एंड फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल सेपरेट meters, like for light loads separate meter, light load and fan load, and separate meter for the power load. So this makes the system more costlier. Now the next one is your block rate tariff. Block rate tariff में क्या होता है कि जो energy consume हुई है that is divided into डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और हर एक ब्लॉक के लिए प्राइस आपका क्या होता है, फिक्स्ड रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ब्लॉक का स्लॉट दे रखा है कि सपोज़ आपके जितनी भी 20 यूनिट्स है, अगर 20 यूनिट्स तक कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पर 5 रुपीज़ आपका लगेगा. उसके बाद जो 20 यूनिट्स के बाद जो भी यूनिट्स रहेगी, लाइक फ्रॉम 20 to 70,
मीन्स ये 50 यूनिट्स, जो नेक्स्ट 50 यूनिट्स रहेगी वो चार्ज होगी आपकी 3.5 रुपीज़ के हिसाब से। एंड उसके बाद की जितनी यूनिट्स रहेगी, सपोज 60 यूनिट्स है, वो आपकी चार्ज होगी ₹3 से। सो ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या होता है कि दैट block of energy is charged at a specified rate and succeeding block of energy are charged at progressively reduced rate। तो वो क्या है आपका reduced rate पे चार्ज होगा। एज यू कैन सी हियर कि जो पहले 20 यूनिट्स है वो 5 रुपीज़ पे आप चार्ज कर रहे हो, उसके बाद की जो 50 यूनिट्स कंजप्शन अगर की है उसको आप 5 से कम होके 3.5 है पे आप उसको रुपीज़ चार्ज कर रहे हो, और उसके जो नेक्स्ट है फर्दर इट इज़ रिड्यूस टू द 3 रुपीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंज्यूमर है राइट, वो अगर 50 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है तो उसके जो स्टार्टिंग के 20 यूनिट्स है वो किस रेट पे आपके हम उसको काउंट करेंगे 5 रुपीज़ के बेसिस पे राइट। और जो नेक्स्ट फिर 30 यूनिट्स रही आपकी, तो उसको हम काउंट करेंगे ये 3.5 रुपीज़ के पे। सो दिस विल बी 20 इंटू 5 प्लस दिस विल बी 30 इंटू 3.5। तो इस बेसिस पे आपका जो चार्ज डिसाइड होगा। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ अ टैरिफ इज दैट इट गिव्स द incentives to the consumer more to use the more electrical energy, right? So the next is your two-part tariff। so two-part tariff में क्या होता है कि two-part tariff में two type of charges will be there, fixed charge tariff and running charge लगते हैं। fixed charge is depends upon maximum demand of the consumer and running charge will depends upon the number of units consumed by the consumer। तो जो फिक्स चार्ज है वो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड कितना है। सपोज कोई भी एक कंज्यूमर है, उसका एक मैक्सिमम डिमांड है फॉर एग्जांपल 10 किलो वाट, तो जनरली जो आपका टू पार्ट टैरिफ है उसमें हम जो फिक्स चार्ज लेते हैं वो मैक्सिमम डिमांड को देख के लेते हैं, और मैक्सिमम डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। तो आपको जो सपोज 10 किलोवाट किसी एक कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड है, तो उसके लिए एक फ़िक्स चार्ज हम दे देंगे कि 100 रुपीज़ वो देगा, राइट। अगर सपोज कोई और कंज्यूमर है, वो 20 किलोवाट उसका क्या है मैक्सिमम डिमांड है, तो उसका फ़िक्स चार्ज कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। सो इस तरह से आपका क्या है फिक्स चार्ज के बेसिस, मैक्सिमम डिमांड के बेसिस पे हम फिक्स चार्ज को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो उसको देना ही देना है। सपोज अगर 10 किलोवाट का मैक्सिमम डिमांड है तो उसको 10 रुपीज़ देना ही है, चाहे वो उस 10 किलोवाट तक यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है एनर्जी को, बट उसको वो चार्जेस देने ही देने हैं। और फर्दर जो दूसरा चार्जेस इसके साथ एडिशनल में और चार्ज देना है वो है रनिंग चार्ज, की वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है ऑन दैट बेसिस, राइट। सो दिस इज total charge will be equals to A plus B, where this one is for fixed charge and this will for the running charges. So advantage of two-part tariff is that it is easily understood by the consumer, and another one is that it recovers the fixed charges which depends upon the maximum demand of the consumer and independent of the number of units consumed by the consumer। एंड डिसएडवांटेज ऑफ टू पार्ट टैरिफ इज़ दैट कि सबसे बड़ी यही डिसएडवांटेज होगी कि आपकी जो मैक्सिमम डिमांड है कस्टमर को वो बतानी पड़ेगी। कंज्यूमर जो रहेगा उसको मैक्सिमम डिमांड अपनी बतानी पड़ेगी। सपोज़ आपका जो आपका जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जहाँ से बिलिंग हो रही है, उनको मैक्सिमम डिमांड बताया किसी इंडस्ट्री ने कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल कि 10 किलो वाट का आपका मैक्सिमम डिमांड है, राइट। तो ये जो 10 किलो वाट है दिस इज़ स्मॉल, बट फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग दिस अमाउंट ऑफ लोड, दिस इज़ 10 किलो वाट अगर उसका मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। उसने अपना 10 किलो वाट बता दिया, बट अगर वो यूज़ कर रहा है 20 किलो वाट, ठीक है, उसने बताया कितना है कि मेरा 10 किलो वाट मैक्सिमम डिमांड है, बट वो तो 20 किलो वाट यूज़ कर रहा है। तो इस बेसिस में क्या है कि वो फिक्स चार्जेस है वो कम दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, ठीक है। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि वो है तो उसने लिखाया अपना 10 किलो वाट है मैक्सिमम डिमांड, बट
वो यूज़ कितना कर रहा है, 5 किलोवाट। तो यहाँ पर वो कंज्यूम तो कम कर रहा है, बट वो चार्ज क्या कर रहा है, फिक्स चार्ज जो दे रहा है वो हाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है मैक्सिमम डिमांड की, कि देयर इज़ always error in accessing the maximum demand of the consumer. And another point is that consumer has to pay fixed charge irrespective of the fact whether he has consumed or the electrical energy or not. So this disadvantage of two-part tariff can be removed by using maximum demand tariff. In this maximum demand tariff, this is same as the two-part tariff. The only difference is that in maximum demand tariff, we use separate meter, separate maximum demand meter at the premises of the consumer. ठीक है, वहाँ पर हम एक मैक्सिमम डिमांड मीटर यूज़ करेंगे, जो मीटर क्या करता है, चेक कर लेगा कि इसका मैक्सिमम डिमांड इस मंथ का कितना था, और सो फिक्स चार्ज विल बी गिवन ऑन दैट बेसिस ओनली। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो ज़्यादा उसने चार्ज पे कर दिया है फिक्स चार्ज, या फिर उसने कम फिक्स चार्ज पे कर दिया है। सो जनरली मैक्सिमम डिमांड टैरिफ इज़ यूज्ड इन used for the bigger consumer, right? This is not suitable for small consumers, because there we have to install maximum demand meter, which cost high. So next is power factor tariff. So power factor tariff में क्या होता है कि this is decided by the power factor of the consumer. There are three types of power factor tariff. First one is KVA maximum demand tariff. अब पावर फैक्टर टैरिफ से हम क्या करते हैं कि पावर फैक्टर देखते हैं कंज्यूमर का कितना पावर फैक्टर है, उस बेसिस पे चार्जेस डिसाइड होते हैं। पावर फैक्टर अगर पुअर पावर फैक्टर है तो कंज्यूमर को पेनल्टी पड़ती है, अगर उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड है तो उसको रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो पहला अगर है केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड देखते थे, टू पार्ट टैरिफ में हम किलोवाट लेके कर रहे थे, यानी कि जो मैक्सिमम डिमांड था दैट विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। बट इन केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ केवीए, नॉट इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो पावर फैक्टर आपका होता क्या है, पावर फैक्टर इज equal to active power divided by apparent power, which means that power factor is inversely proportional to apparent power, which is kVA. तो अगर आपके पास kVA ज़्यादा है तो पावर फैक्टर इज़ लो। तो आप देख सकते हैं कि kVA अगर हायर है, पावर फैक्टर लो है, तो कंज्यूमर साइड का पावर फैक्टर अगर लो आ रहा है तो उसको क्या होगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। और सपोज़ आपका केवीए अगर कम होता है तो पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव्ड है, तो सम इंसेंटिव्स विल बी गिवन टू द कंज्यूमर। सो बाय ऑब्जर्विंग दिस केवीए रेटिंग, KVA maximum demand in terms of a KVA, we can charge the consumer. Another one is your sliding tariff. So in sliding tariff, यहाँ पर हम एक रेफरेंस सेट कर देते हैं। रेफरेंस भी इस तरह से सेट है कि अगर आपका 0.8 है, सपोज दिस इज़ योर 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है, इससे पावर फैक्टर अगर कम होता है तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर को एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, मींस पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। अगर उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड है, ग्रेटर देन 0.8 लैगिंग है, तो उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड थर्ड वन इन दी पावर फैक्टर टैरिफ इज़ किलोवाट एंड केवीआर टैरिफ। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव पावर आपकी सेपरेटली मेजर होती है एंड रिएक्टिव पावर क्या है, सेपरेटली मेजर होती है। तो होता क्या है कि जब भी आपकी रिएक्टिव पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी जो आपका जो पावर फैक्टर है दैट इज़ रिड्यूस्ड। तो आप रिएक्टिव पावर को देख के पावर